Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the different reactions of the benzene diazonium salt and the different reactions mechanism like the Sandmay reaction mechanism, Gattermann reaction mechanism. So first of all, we will see about the reactions of benzene diazonium salt. The benzene diazonium salt generally taken is benzene diazonium chloride. So that is the structure of benzene diazonium chloride. You can see in the structure there is a benzene ring, so word benzene is here. There are two nitrogen atoms, so di word is here. HO word is used for nitrogen. EM word is used for positive charge, and there is a Cl. So the complete name here is benzene diazonium chloride. So benzene diazonium chloride can show the different reactions as there is a positively charged nitrogen atom which is directly attached with the benzene ring carbon atom. So what will happen? The positively charged nitrogen atom can abstract the CN bond electrons, CN bond electron towards itself, and finally the benzene ring carbon atom acquires the complete positive charge. And due to that, there will be a need of nucleophile negatively charged species which can attack on the benzene ring. So in the different reactions of the benzene diazonium salt, there is a nucleophile which will attack on the benzene ring carbon atom on which the positive charge will develop after abstracting the CN bond pair electrons by the positively charged nitrogen atom of the benzene diazonium chloride. So now we will discuss about the different these reactions of benzene diazonium chloride. In the first part, we will again see about the electronic configuration of nitrogen. हम सबसे पहले दोबारा जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. You can see the configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3 because the atomic number of nitrogen is 7. In the valence shell, there are only 2s and 2p क्योंकि आपकी जो पहली शेल होती है फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल ही प्रेजेंट होती है तो 1s2. सेकंड शेल में सिर्फ दो ही सब शेल प्रेजेंट होती हैं 2s एंड 2p. देयर इज नो 2d, इसके अंदर 2d नहीं होती. इसलिए अगर आप इसको ओपन फॉर्म के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को लिखें सिर्फ वैलेंस शेल वाले पार्ट को तो 2s के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. 2p के अंदर हमने 3 इलेक्ट्रॉन को फिल अप किया अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल. So there are total of 3 unpaired electrons. There are the total of 3 unpaired electrons in the valence shell, which are present in the 2px, 2py, and the 2pz. There are 3 unpaired electrons which are used in the formation of the covalent bond. While there is one lone pair electrons, एक lone pair electron भी है जो 2s के अंदर which act as the lone pair. और जो ये 2s के electron है they can never be excited. इनको हम फर्दर एक्साइट नहीं कर सकते बिकॉज फॉर द एक्साइटेशन देयर इज ए नीड ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल. आपके जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2s और 2p ही होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया उसके अंदर 2d नहीं है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट 2d orbital in the nitrogen, there occurs no excitation of the 2s electron. So the nitrogen can form a maximum of 3 covalent bond, and if there is further requirement, the nitrogen atom can form one more coordinate bond. That will be the coordinate bond using the lone pair electrons present in 2s, present in the 2s. इसलिए आपने देखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के अंदर the nitrogen atom which is directly attached with the benzene ring carbon atom acquires the positive charge. आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम के 4 बॉन्ड है क्योंकि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता. और क्योंकि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो फोर्थ बॉन्ड कौन है? वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा. और जब वो अपने लोन पे डोनेट करेगा तो उस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है. और पॉजिटिव चार्ज के पास कोई नेगेटिव काउंटर आयन भी रहेगा. वो नेगेटिव काउंटर आयन यहाँ पे बोलो कौन है? Cl नेगेटिव आयन है. तो ये स्ट्रक्चर हुई बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की जो हमने आपको दोबारा से इन ब्रीफ बता दी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम इसकी डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे. देखो फर्स्ट पार्ट में हम अटैक होते हुए दिखाएंगे वाटर का. अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि दैट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज स्टेबल ओनली ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. जो आपका
Benzene diazenyl chloride height is stable only in that particular temperature range. If we increase the temperature above 5 degrees Celsius, then the simple hydrolysis can takes place. Simple hydrolysis हो जाती है after the addition of water, क्योंकि जो water है उसके अंदर मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी जो इसकी 3 है, 4 तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है बेंजीन रिंग वाले कार्बन से क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और ऑब्स्ट्रक्ट कर ले तो बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज आ गया वहां पे इन डिफरेंट रिएक्शंस आप देख पाएंगे कि जैसे वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास क्या है, देखो 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने उन लोन पेयर्स को डोनेट कहाँ पे करेगा, वो डोनेट का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, उस बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करे, अपने साथ के साथ OH बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो यहाँ से लॉस होगा H पॉजिटिव आयन, क्या लॉस हो जाएगा वहां से H पॉजिटिव आयन, तो ये जो H पॉजिटिव आयन यहाँ से ये लॉस होगा, ये किसके साथ मिलेगा, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन काउंटर आयन है, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल गया आपका HCl, और सेकंड आपकी गैस इवॉल्व हो गई, बोलो कौन सी, नाइट्रोजन गैस, देखो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई। वेंस लाइक मेथड के द्वारा आप नाइट्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के और भी कई मेथड हैं, लाइक डुमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, इवन जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अपनी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी जो नाइट्रोजन है उसकी डिटेक्शन जैसे जो फार्मर्स के लिए की जाती है, ताकि वो जो भी प्लांटेशन करते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन मिले, तो अर्थ के अंदर भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस को देखने के लिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दैट पर्टिकुलर सॉइल, तो भी मेथड डिफरेंट यूज किए जा सकते हैं। आमतौर पे जो मेथड यूज करते हैं वो जैसे डुमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, ऐसे यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए वेंस लाइक मेथड भी यूज किया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, यहाँ पे OH मींस फिनोल बन गया। अटैक किसका हुआ यहाँ पे, वाटर का। आप ध्यान से एग्जाम के अंदर भी आपको इसी टाइप से एरो के ऊपर लिख के आप अलग से ऐसे वाटर को शो कर सकते हैं, इस टाइप से मैकेनिस्टिक पाथवे आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि जो फिनोल आपका बन गया, अगर हम इसमें जिंक डस्ट डाल दें तो क्या होगा, अगर हम जिस जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वहां से, तो क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट ZNO, और बेंजीन विल बी द प्रोडक्ट, बेंजीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मींस आप हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन 3 रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, या आपसे कन्वर्जन भी पूछे जा सकते हैं कि कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू फिनोल या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। तो इसीलिए जितनी भी कोरिलेटेड रिएक्शंस होंगी हमें डायरेक्ट रिएक्शंस ही नहीं देखनी कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर वाटर डाल दिया तो क्या होगा, आगे हम देखेंगे KCN डाल दिया तो क्या होगा एंड सो ऑन। हमें जो आगे प्रोडक्ट बनता है उससे फर्दर रिएक्शन से क्या बन सकता है, क्योंकि वो इसी सीरीज की रिएक्शन हो जाती है, वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपके बेंजीन को अगर हमें डायरेक्टली ऑब्टेन करना हो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से, तो कैसे करें, आप इसमें डाल सकते हैं H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, Cu+ आयन। H3PO2 का नाम क्या है, आपको और भी जो फास्फोरस एसिड है उनके नाम याद रखने चाहिए, जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड कहते हैं आप उसे, H3PO4 को आप क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। H3PO3 को क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड, यहाँ पे इक लगाते हैं, फास्फोरिक एसिड, और ये क्या आएगा आपका, फास्फोरस एसिड, और इसका नाम है H3PO2 का हाइपोफास्फोरस एसिड। सिमिलरली आपके जो कॉपर है ये 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या तो +1 या +2, तो यहाँ पे कॉपर हमने जो लिया +1 स्टेट के अंदर है, तो इसके लिए अस वर्ड यूज करते हैं OUS, तो क्यूप्रस आयन है ये यहाँ पे, और +2 स्टेट में हो तो IC यूज करते हैं, क्यूप्रिक लाइक। जैसे आपने आयरन भी देखा होगा, आयरन शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +2 एंड द +3। इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट you use इक मींस sorry you use us, so that is the ferrous ion. In the higher oxidation state you use IC, that is the ferric ion.
तो इस टाइप से ये कॉमन बातें हैं, बेसिक बातें ही आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर ये डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप जो लगा हुआ है, इसको कैसे रिमूव करते हैं। वो तो मैंने बता ही दिया कि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने नॉर्मल जो इसकी वैलेंसी है वो 3 होती है, उसको मेंटेन करने के लिए इट कैन इजीली अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज आने से नाइट्रोजन एटम और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, तो इट कैन इजीली अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द CN बॉन्ड। जो CN बॉन्ड है उससे ये इजीली अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई नेगेटिव स्पीसी अटैक करेगी, क्योंकि बेंजीन रिंग के कार्बन पे अटैक करेगी, इसलिए उस नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्योंकि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी या कोई ऐसी स्पीसी जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो वो स्पीसी जब अपने लोन पेयर डोनेट करती है, जैसे हमने वाटर के लोन पेयर डोनेट होते हुए दिखाए थे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, तो न्यूट्रल स्पीसी थी। तो कोई भी स्पीसी अपने जो लोन पेयर डोनेट करती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी डोनेट करती है, किसको? H को डोनेट करती, तो आप उसे बेस कहते। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर है, तो H को छोड़ के किसी भी दूसरे एटम को जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं तो आप कहते उसे है न्यूक्लियोफाइल। तो पिछली रिएक्शन के अंदर इन द लास्ट रिएक्शन द H2O एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं सेंडमे रिएक्शन और द गटरमान रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो सेंडमे रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट कौन है? CuCl। CuCl में Cl के ऊपर आप पहले से जानते ग्रुप 17 एलिमेंट है, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, तो Cu के ऊपर कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि कंपाउंड तो ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो Cu के ऊपर +1 चार्ज है, जैसे अभी आपको बताया, तो असवर्ड यूज करते हैं, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, और CuCl2 होता तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता। तो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड आप यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और रिएजेंट आपने क्या डाला? वो आप HCl भी डाल सकते हैं, HBr भी डाल सकते हैं, HI भी डाल सकते हैं। लेकिन गटरमान जो रिएक्शन उसमें आप देखिए कैटलिस्ट कौन है, हमने यूज कर रखा है CuCl। बोलो कौन है ये? CuCl किसमें था? सेंडमे रिएक्शन में। और गटरमान में कौन है? बोलो ये Cu है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको इसी कैटलिस्ट का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने कैटलिस्ट गलत लिख दिया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, बिकॉज दीज आर दी नेम रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रिएक्शन है। सेंडमेयर ने कैटलिस्ट यूज किया CuCl, गटरमान ने कैटलिस्ट यूज किया Cu, और रिएजेंट आप आगे HCl भी कर सकते हैं, HBr भी कर सकते हैं, वो आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने जो रिएजेंट लिया, अगर आपने दोनों ही रिएक्शन में मान लीजिए HCl लिया, तो इसमें काउंटर नेगेटिव आयन बोलो कौन है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही गटरमान में देखें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो अटैक करेगा यहाँ पे देखो, वाटर वाले एरो को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे अटैक बोलो कौन करेगा? बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर Cl नेगेटिव। तो जो Cl नेगेटिव है इट विल अटैक ऑन दैट बेंजीन रिंग कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था? जब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम ने CN बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया था, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन? क्लोरोबेंजीन। कौन बन जाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। ऐसे ही गटरमान रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। अब जो ये आपका एक टॉपिक आता है मेथड्स टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, उसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर भी आपने देखा Cl नेगेटिव आयन है, और जो हमने रिएजेंट डाला CuCl ऑब्लिक में HCl, उसके अंदर भी Cl नेगेटिव आयन है। तो कौन सा Cl है जो इस चीज को, इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है मैकेनिज्म के दौरान? तो वो पहले से प्रूव किया जा चुका है कि वो जो आप रिएजेंट डालते हैं HCl, वहीं से Cl आता है और वो अटैक करता है। तो उस पार्ट के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं कि आपके पास अगर बेंजोनाइट्राइल आपको प्रिपेयर करना हो तो आप क्या करेंगे? बेंजोनाइट्राइल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे? बोलो कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं? दैट इज द KCN। बोलो आप क्या यूज कर सकते हैं? KCN आप डालेंगे यहाँ पे। देखो ये हमने यूज किया KCN। तो इसमें अब अटैक कौन करे बेंजीन रिंग के ऊपर? वही नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट बोलो कौन है KCN में? दैट इज द CN नेगेटिव। तो CN जो नेगेटिव है, नाउ इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग कार्बन एटम, और इस तरह से प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल भी आप इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम डाल दें H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा? देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयन। H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव के अंदर अगर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें तो इन द फर्स्ट स्टेप देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ Cl नेगेटिव आयन
of benzene diazonium chloride and the BF4 negative ion of the HBF4. तो को आपकी स्पीसी बन गई, देयर अकर जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयन। इन द नेक्स्ट स्टेप यू जस्ट हीट इट। आप इसको सिर्फ हीट कर दें। हीट करने से क्या होगा, जो BF4 जो नेगेटिव जो आयन है ये कैसे बना था, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द BF3 से बना था। तो दोबारा से अगर आप इसको हीट कर देंगे तो ये जो आपका BF4 नेगेटिव है, इट विल अगेन डिसोसिएट इन दीज टू पार्ट, दैट इज द BF3 एंड द F नेगेटिव। अब ये जो F नेगेटिव है, नाउ इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग कार्बन एटम। किस लिए देखो ये अटैक करेगा, बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम विल ऑब्स्ट्रक्ट द CN बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, व्हिच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से बोलो कौन सी गैस रिलीज होगी उसी टाइप से, ये नाइट्रोजन गैस देखो रिलीज हो गई। बेंजीन रिंग के ऊपर F अटैच हो गया और प्रोडक्ट कौन बन गया आपका, फ्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट विल बी द फ्लोरोबेंजीन। तो ये जो फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, आपने पहले भी सीखा है कि जो आपका बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम देखो साइड में यहाँ पे बता दें, बेंजीन रिंग से अगर आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना चाहते तो एल्काइल और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था, देयर अकर्स एक्सप्लोजन। अब बेंजीन रिंग के ऊपर आप ये चाहते डायरेक्ट चलो फ्लोरिनेशन कर देते हैं, बेंजीन के ऊपर F लग जाता, लाइक इन केस ऑफ क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, जो रिएक्शन हम करते हैं वो डायरेक्ट क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तो हो जाती है, क्योंकि आपके जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऑल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आउट ऑफ दीज different oxidizing agent, fluorine is the strongest oxidizing agent in the whole periodic table। और ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिएक्शन इज, जो ये रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि एक्सप्लोजन ही हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसी मेथड से जो आपको बताया गया कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आप लेते हैं, उसके अंदर आप क्या डालते हैं, HBF4 नेगेटिव, और नाउ देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयन इन बिटवीन द Cl नेगेटिव आयन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एंड द BF4 नेगेटिव आयन ऑफ HBF4। फिर जो इंटरमीडिएट बनता है आप उसको जस्ट हीट करते हैं, तो हीट करते ही नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और BF4 जो नेगेटिव जो स्पीसी थी उसका डिसोसिएशन होके BF3 और F नेगेटिव जनरेट होते हैं, और उसके बाद जो F नेगेटिव है वो बेंजीन रिंग के पोस्टली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर क्या करती है, अटैक, और उसी से देखो नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है और इस तरह से बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। तो ये चीज भी आप साथ के साथ याद रख लेना कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के द्वारा फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसको प्रिपेयर इसी रिएक्शन से करते हैं, और ये रिएक्शन कहलाती थी बाल्ज-स्कीएमान रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को क्या कहते थे, दैट रिएक्शन इज द बाल्ज-स्कीएमान रिएक्शन। तो ये जो बाल्ज-स्कीएमान रिएक्शन है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज द BALZ बाल्ज SCHIAMANN बाल्ज-स्कीएमान रिएक्शन थी आपकी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर क्या ऐड कर दें, NaNO2, तो उसी टाइप से देखो फैक्ट तो वही बेसिक रहेगा, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है वो अटैक बेंजीन रिंग वाले कार्बन एटम के ऊपर ही करेगी। जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में बेंजीन रिंग का कार्बन एटम है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो डाइजेनियम क्लोराइड वाली जो नाइट्रोजन, जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो CN बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो अट्रैक्ट करने से देखो दोबारा से ये हम अटैक होते हुए इस पे दिखा सकते हैं, देखो ये इस टाइप से अटैक होगा, O के थ्रू अटैक होगा या नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस के अंदर भी पहले हमने आपको समझाया था। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। अगर हम Ki डाल दें तो वही बेसिक रिएक्शन चलती चली जाएंगे। Ki डालेंगे तो कौन अटैक करेगा, आपका I नेगेटिव देखो अटैक करेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले देखो कार्बन के ऊपर, तो आयोडोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। अगर हम इसके अंदर डाल दें सोडियम आर्सेनेट Na3ASO3 ओब्लिक में कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है वो +2 स्टेट के अंदर है देखो, और SO4 क्योंकि 2 नेगेटिव होता है, बार्ट रिएक्शन है ये। तो इसके दौरान फिनाइल आर्सेनिक एसिड ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। इन डिफरेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसमें NaOH डाल दें, गोमबर्ग बेकमान रिएक्शन है ये आपकी,
तो इसके दौरान देखो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव है और OH बोलो क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से बाइफिनाइल बनेगा इस रिएक्शन के दौरान। इसका भी मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। दिखने में आपको ये दिखता होगा कि जैसे NaOH आपने डाला तो OH नेगेटिव का अटैक होके आपका फिनोल बन जाना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान बाइफिनाइल इज द प्रोडक्ट। कैसे बनता है वो मैकेनिज्म में बताएंगे आपको। नेक्स्ट, अगर हम SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दें या सोडियम सल्फाइड डाल दें Na2SO3, तो फिनाइल हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट। तो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी। देखो दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों अटैच है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, आपका रिमूवल नहीं होता डाइजेनियम क्लोराइड ग्रुप का, रिडक्शन रिएक्शन है ये यहाँ पे। तो फिनाइल हाइड्रोजन विल बी द प्रोडक्ट, इसका मैकेनिज्म भी है। और वैसे सिंपल आपको दिख रहा है, अगर हम देखो सिंपल इसमें रिडक्शन कर दें, देखो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज हो जाए और नॉर्मल वो वैलेंसी रखना चाहे दोनों नाइट्रोजन, तो देखो क्या होगा। देखो जितने बॉन्ड ब्रेक किए, एक ही बॉन्ड हमने रखा, तो उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन था, देखो और बॉन्ड ब्रेक हो गए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। तो एक बॉन्ड तो देखो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ही रहेगा, एक बेंजीन वाले कार्बन के साथ रहेगा, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड और बनाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वैलेंसी आपको बिल्कुल स्टार्ट में हमने इसीलिए बताई थी। तो एक H तो लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब जो आपका एंड कार्बन एटम है उसके ऊपर एक ही बॉन्ड रहेगा, तो कितने H लगेंगे वहां पे, देखो 2H लग जाएंगे, देखो NH2। तो यही हमने लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये NH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये आपका NH, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है ये आपकी। इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ना होता तो ये जो आपका इतना प्रोडक्ट होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, इसे आप हाइड्रोजन कहते हैं। इस हाइड्रोजन के अंदर आपने सिर्फ क्या किया, देखो यहाँ पे ये एक H हटा के और यहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पे कौन है, वो है आपका बेंजीन रिंग। तो इस तरह से कौन बन गया, ये कहलाया फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल ग्रुप आपने लगाया है, तो इसे आप फिनाइल हाइड्रोजन कह देते हैं। नेक्स्ट जो ये फिनाइल हाइड्रोजन बना, अगर हम इसमें फर्दर रिडक्शन कर दे तो देखो क्या होगा। अगर आप फर्दर रिडक्शन करेंगे इसी के अंदर, तो देखो आपके एनिलीन बना। देखो कैसे बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का फर्दर क्लीवेज हुआ। देखो इस टाइप से आप देखते जाएं, दोनों साइड में देखो आपने क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन, क्योंकि एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक और HCl के बीच में देखो इस टाइप से जब रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ZnCl2 प्लस में क्या H, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये H ही तो है जो क्या करती है, रिडक्शन। तो इस टाइप से रिडक्शन हुई और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, एनिलीन। तो ये थी डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंट और रिएक्शन, जैसे जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी। कैसी, ध्यान से देखे, दोबारा से मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या थी, जिसमें आपने H3PO2 डाला था, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu प्लस आयन। तो क्या हो गया था, ये थी आपकी डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो ग्रुप है, डाइजोनियम क्लोराइड जो ग्रुप है, यही हट गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर। तो उसी का देखो हमने ये नाम रखा है डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो एक आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे इसमें हमने क्या डाला, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, और हीट किया और डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, बेंजीन। तो अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखो होता क्या है, सबसे पहली स्टेप के अंदर देयर अकर्स द जनरेशन ऑफ फिनाइल रेडिकल। देखो किस टाइप से हुआ, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, Cu प्लस आयन जो क्यूप्रस आयन है, आपने ये पहले ही पढ़ा था, कॉपर शोज 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2। तो ये जो Cu प्लस 1 आयन है, अब इसका रोल देखिए, देखो क्या है, बेंजीन रिंग। देखो ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर डाइजीनियम क्लोराइड जो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज जो नाइट्रोजन एटम है, it obstruct the loosely bound pi bond electrons of N triple bond towards itself, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंड कार्बन एटम है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो मैंने अभी एरो लगाया Cu+1, ये क्या करेगा, ये अपना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया अपना, एंड इटसेल्फ इट कन्वर्टेड इनटू Cu+2 आयन। देखो Cu+1 ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, एंड जो Cu+1 है ये कन्वर्ट हो गया Cu+2 आयन के अंदर। तो जो एंड कार्बन एटम है ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, देखो इस टाइप से।
नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, जो ट्रिपल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम ने देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देखो इस टाइप से ले लिए, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, लेकिन जो एंड कार्बन एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज देखो आ जाना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अब नहीं आया, क्योंकि जो ये कॉपर +1 है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो एरो जो हमने दिखाया है ये क्या दिखाया है, 1 इलेक्ट्रॉन, देखो ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया, कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया, देखो वही एक जो डॉट अब हमने दिखाई है नाइट्रोजन के ऊपर, ये वही डॉट है जो Cu+1 से आई है, और अब ये न्यूट्रल स्पीसी है। अब इसके बाद देखो नाइट्रोजन जो होता है, अब ये जरूर ध्यान रखें, हम शो नहीं करते, हर ये नाइट्रोजन एंड कार्बन उसके पास एक लोन पेयर तो देखो पहले से था, देखो इस टाइप से लोन पेयर तो है ही। अब आप काउंट कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के चारों तरफ, देखो 2 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए देखो बॉन्ड के अंदर, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये आप जानते ही हैं पहले से, देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी थी, आपने देखा था ना कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, देखो 1s2 2s2 2p3। तो दोबारा से अब इसके चारों तरफ आप देखो नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन दोबारा हो गए, एक इलेक्ट्रॉन Cu+1 आयन से लेने के बाद। अब उसके बाद अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब होगा होमोलाइटिक फिशन। क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन। देखो कैसे कि नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, देखो इस टाइप से। ऐसा क्यों, वो फोर्स कहां से मिली, ये जो नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन जिसके ऊपर अकेला इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल की फॉर्म है, ये अनस्टेबल स्पीसी है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया दूसरे नाइट्रोजन की तरफ, और वो जो दूसरा नाइट्रोजन है एनसी बॉन्ड्स का होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए एक एक्सर्ट मिला, एक फोर्स मिला, जिसकी वजह से उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। देखो नाइट्रोजन हाफ एरो से मैंने शो किया है यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास जो अकेला इलेक्ट्रॉन था थर्ड इलेक्ट्रॉन देखो हाफ एरो दिखाया, CN बॉन्ड का देखो जो क्लीवेज हमने हाफ एरो से शो किया है, मींस होमोलाइटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन गैस। और अब बेंजीन रिंग के ऊपर एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया, इसी को कहते हैं फिनाइल रेडिकल, तो फिनाइल रेडिकल देखो जनरेट हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या डाला इसमें, इसके अंदर हमने डाला H3PO2, क्या डाला है हमने H3PO2। तो जो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में देखो H3PO2 की हमने स्ट्रक्चर बना दी। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर 15 है उसी के अंदर तो है आपका फास्फोरस, देखो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड है वो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट कितने बना सकते हैं, 5, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन से आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपका फास्फोरस है उसकी कॉन्जुगेशन अगर हम लिखें तो देखो ध्यान से सिर्फ वैलेंस शेल को एक्सटेंड कर देते हैं 3s2 3p3, और इसमें तो 3d भी है क्योंकि थर्ड शेल के अंदर डी सब शेल भी होती है, तो दैट इज द रीजन कि s का जो एक इलेक्ट्रॉन है इट कैन शिफ्ट इनटू द डी सब शेल ऑर्बिटल, देखो ऐसे शिफ्ट हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन ये फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता था, 3 कोवलेंट बॉन्ड, फोर्थ बनाता था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता था, 3 कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, द फास्फोरस एटम कैन फॉर्म द 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस फास्फोरस कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है बाय एक्साइटिंग द 3s इलेक्ट्रॉन इनटू द 3d सबशेल ऑर्बिटल। और वही हमने देखा H3PO2 की स्ट्रक्चर में कि इसमें आप ध्यान से देखें जो सेंट्रल फास्फोरस है उसके 5 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना रखे हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड की जगह कौन अटैच है बोलो वहां पे OH ग्रुप, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में देखो इस टाइप से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह से फास्फोरस के ये 5 बॉन्ड है, तो ये मैंने बता भी दिया कि ऐसा क्यों हुआ, फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बना सकता है। नेक्स्ट अब जो फिनाइल रेडिकल है, देखो जितनी भी ये इंटरमीडिएट स्पीसी बनती हैं, दीज ऑल आर वेरी रिएक्टिव स्पीसी, दीज आर अनस्टेबल स्पीसी, दे आर लो हाफ लाइफ स्पीसी, ये बड़ी रिएक्टिव होती हैं, और इसीलिए क्या होगा फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस इन द हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो पीएच बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक देखो क्लीवेज होगा, यहाँ से हाफ एरो से हम शो करेंगे, देखो H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बेंजीन रिंग वाले कार्बन के पास देखो गया, वहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनाइल रेडिकल
वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द H फ्री रेडिकल जो बन जाएगा होमोलिटिक फिशन से, तो इस टाइप से बेंजीन रिंग बन जाएगा। कौन बन गया बोलो? बेंजीन रिंग। और जो साइड में आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नाउ द अटैक ऑफ दैट H2PO2 फ्री रेडिकल। अब बोलो ये जो फ्री रेडिकल बना है ये कौन है? इसमें दो तो H है, एक P है, दो ऑक्सीजन है। दैट इज द H2PO2 free radical is generated which will attack on the fresh by benzene diazonium chloride। देखो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमने लिया, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। बोलो कौन? H2PO2 फ्री रेडिकल विल अटैक। अब देखो किस टाइप से रिएक्शन होगी, बिल्कुल उसी टाइप से देखो अब रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो ये जो फास्फोरस है जिसके पास बोलो कौन है यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल है। अब देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट बोथ द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ टू न्यूट्रलाइज देयर पॉजिटिव चार्ज। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम ने अपनी तरफ ले लिए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ देखो, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? उस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो एंड कार्बन एटम है, और जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो अब क्या हो, ये जो H2PO2 फ्री रेडिकल है, ये जो इसके पास ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, देखो ये अकेला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट करेगा अकेले इलेक्ट्रॉन को। देखो वो इलेक्ट्रॉन उस नाइट्रोजन को मिल गया, और देखो फर्दर ये स्पीसी बनी, देखो जिसमें आपको ये फ्री रेडिकल दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे दिखाना है हाफ एरो, ये आप ध्यान रखें, ये हाफ एरो आप जरूर शो करें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी। ऐसे ही ऊपर वाली स्टेप के अंदर भी आप वहां पे हाफ एरो शो करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप के अंदर वहां पे Cu+1 आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, हाफ एरो देखो मैंने वहां पे भी कर दिया है, यहाँ पे भी हाफ एरो आप शो करेंगे। तो इस टाइप से आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। ये सेम है, देखो ऊपर वाली फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बना था आपका वही सेम फ्री रेडिकल बन गया। नाइट्रोजन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सेम है। देखो मैंने इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया यहाँ पे, 3 लाइंस का मतलब इक्विवेलेंट है। फर्दर आगे स्टेप वही सेम चलती चली जाएंगी देखो, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पे शो किया है कि मीन्स ये वही स्ट्रक्चर बन गई जो पहली स्टेप के अंदर बनी थी। फिर से वही नाइट्रोजन गैस देखो आपकी इवॉल्व होगी, बोलो कौन सी नाइट्रोजन क्या इवॉल्व होगी? ये होमोलाइटिक फिशन होगा दोबारा से इसमें, ये नाइट्रोजन जो ओड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ये, और इधर से CN बॉन्ड का देखो होमोलाइटिक ये क्लीवेज हुआ यहाँ से, तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व क्या बन गया? आ गया फिनाइल रेडिकल। क्या बन गया? फिनाइल रेडिकल। उसके ऊपर फिर से वही H3PO2 अटैक करेगा, फिर से होमोलाइटिक फिशन, बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग बन जाता है एंड सो ऑन, ये रिपीटिशन होती चली जाती है। तो ये थी आपकी डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, मींस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर कन्वर्ट होता है बाय एडिंग द H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu+1 आयन। तो ये था मैकेनिज्म डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का। और देखो ये आपकी स्पीसी देखो ये बन गई, इस अब की बार फास्फोरस के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये मैकेनिज्म सारे आपस में बिल्कुल मैच करेंगे, एक जैसे आपको दिखाई देंगे। इसलिए जो मैकेनिज्म अभी हमने आपको पीछे बताया डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का, उसको आप बड़े समझ कर ही याद करें, उसको आपको क्रैम नहीं करना है, क्योंकि उसको आपने समझ के याद कर लिया तो जो नेक्स्ट हमारे मैकेनिज्म आने वाले वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखो जैसे नेक्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन, आपको ध्यान हो, इसमें मैंने बताया था रिएजेंट आप जरूर ध्यान रखें, जो कैटलिस्ट को आप जरूर ध्यान रखें। वो कौन था? सैंडमेयर और गटरमैन के बीच में मैंने बताया था, वो था आपका CuCl इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या HCl आप डाल सकते हैं, HBr भी आप यूज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड होगा कि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपने HCl लिया, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप CuBr और HBr लेंगे आप, तो रिएक्शन वही कहलाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले होगा जनरेशन ऑफ CuCl2 नेगेटिव आयन। देखो कैसे, आपके पास बोलो कैटलिस्ट कौन लिया हमने? CuCl। देखो CuCl जो है ये सबसे पहले क्या करता है, HCl जो हमने रिएजेंट है हमारा उसके साथ ये क्या करेगा बोलो? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से क्या होगा, जो कॉपर है ये क्या है आप जानते हैं, इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इनके पास। तो क्या होगा, जो ये Cl नेगेटिव आयन है ये अटैक किसके ऊपर करेगा बोलो? कॉपर के ऊपर, और वहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से आपका क्या बन गई बोलो? ये स्पीसी आपकी CuCl2 नेगेटिव। इसको या तो आप इसी टाइप से दिखा दें जैसे आपको हर बार बताया गया है, या क्या होगा देखो ये जो स्ट्रक्चर थी आपकी देखो Cu
और इधर बोलो कौन था, Cl, ये तो थी ही। अब जो Cl नेगेटिव था उसने क्या बनाया, देखो या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करें, आप ऐसे एरो शो करें। Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इस बॉन्ड के बनने में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहां से आए, Cl से। तो या तो आप एरो शो करें, एरो शो करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट एरो जो हमने दिखाया, या हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर आपकी बना देंगे, वहां पे देखो जो Cu के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, बोलो नेगेटिव चार्ज। Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज। जो Cl नेगेटिव है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, क्योंकि उसने अपने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो Cu है उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव्स लाइक द कोवलेंट बॉन्ड। अब जो ये देखो जो बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, देखो ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद C और Cl के बीच में देखो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, बॉन्ड बनने के बाद इट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। मींस ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का है और एक बोलो किसका है, आपका Cl का है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लिया है कॉपर ने वो तो Cl वाला लिया है, इसीलिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉपर पे आ गया, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव जो था वो किसके पास जा चुका है, कॉपर के पास। तो इसलिए Cl के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। दीज आर दी बेसिक फैक्ट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे, और उसके साथ निकल कौन गया, बोलो H पॉजिटिव। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो ये CuCl2 नेगेटिव आयन जो बना है, नाउ इट विल अटैक ऑन द फ्रेश बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। देखो बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे क्या है, देखो CuCl2 जो नेगेटिव है, ये जो कॉपर है, इस कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, मैंने पहले बताया कि इस कॉपर के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कहां से आया था, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था Cl नेगेटिव ने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया वहां से। तो अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं N और N के बीच में, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, बोलो अट्रैक्ट। देखो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये एंड कार्नेटम है उसके ऊपर आ जाएगा देखो पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, ये जो CuCl2 है ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये हाफ एरो आप शो करेंगे, हाफ एरो। तो ये जो CuCl2 है जो कॉपर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस नाइट्रोजन को। तो जिसकी वजह से क्या होगा, CuCl2 नेगेटिव CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस टाइप से CuCl2 बन गया आपका, और जो नाइट्रोजन है उसके पास देखो ओड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो नाइट्रोजन के पास ये ओड इलेक्ट्रॉन, अगर ये CuCl2 अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता उस नाइट्रोजन को जो एंड कार्बोनेटम है, तो बोलो उस पे कैसा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज। देखो जो अभी तक वहां पे लगा हुआ मैंने दिखाया पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन अब वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया उस पे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिल गया, CuCl2 से, CuCl2 नेगेटिव आयन से मिल गया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, ये आपकी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी बन गई जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर है। अब आगे की स्ट्रक्चर देखो लगभग आपको अब समझ में आ ही गई होगी, जैसे कि हमने डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म देखा था। देखो दोबारा से अब क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिक फिशन से, वो भी क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीसी है। नाइट्रोजन जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है उसने देखो अपना हाफ एरो, अपना हाफ एरो देखो मैंने शो किया, देखो यहाँ पे अब आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग है, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे नाइट्रोजन ने CN बॉन्ड क्लीवेज से जो एक इलेक्ट्रॉन मिला, देखो हाफ एरो मैंने वहां पे दिखाया, कौन सी गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, कौन सा रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल देखो यहाँ पे बन गया। अब जो फिनाइल रेडिकल यहाँ पे बन चुका है, अब वहां पे तो हमें क्या बनाना था, बोलो बेंजीन रिंग। तो आपने देखा होगा जब बेंजीन रिंग बनाया तो वहां पे अटैक किसका हुआ था, वहां पे जो अटैक हुआ था वो अटैक हुआ था H3PO2 का। H3PO2 में से क्या होमोलाइटिक क्लीवेज से रिलीज हुआ था, वहां से H फ्री रेडिकल आया था। तो ये फिनाइल रेडिकल जो बना है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, सॉरी ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये फ्री रेडिकल है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे CuCl2 के अंदर से देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जो Cl है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, होमोलाइटिक क्लीवेज देखो, ये फिनाइल फ्री रेडिकल का ओड इलेक्ट्रॉन देखो, दोनों के बीच म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, और इस टाइप से ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलो क्लोरोबेंजीन। तो आप ध्यान रखें, देखो जो बेसिक फैक्ट है जो आपने मैच किया आपस में, डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन और जो सेंडमे रिएक्शन हमने पढ़ी इसके अंदर, कि हमारे पास एक ऐसी स्पीसी होती है, देखो सेकंड स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं, एक ऐसी स्पीसी हमारे पास होनी चाहिए जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अटैक करती है,
और उसमें होता क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो नाइट्रोजन एटम है वो जो N और N के बीच में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेता, अब्स्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम का पॉजिटिव चार्ज देखो न्यूट्रलाइज हो गया और जो एंड कार्ब नाइट्रोजन है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन एटम है एंड वाला, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसी अलग अलग हो सकती हैं। वो स्पीसी आपके कौन थी, आपके जो अपने लास्ट जो मैकेनिज्म पढ़ा डी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, उसमें अलग है। यहाँ पे बोलो वो स्पीसी कौन ली, ये CuCl2 नेगेटिव आयन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फर्दर जो आगे आपका अनस्टेबल स्पीसी आगे बनी जिसमें नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन है, वहां से नाइट्रोजन रिलीज हुई, फिनाइल रेडिकल बनता है। जो फिनाइल रेडिकल जो बना यहाँ पे कौन फर्दर अटैक हुआ, CuCl2 का अटैक हुआ। जो पीछे फर्स्ट स्टेप के अंदर अभी यहाँ पे जो सेकंड स्टेप का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर कौन रिलीज हुआ था, CuCl2, देखो CuCl2 रिलीज हुआ था। और यहाँ से दोबारा से देखो होमोलाइटिक क्लीवेज आपका हुआ तो Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, दोबारा से क्या बन गया, CuCl। आप ध्यान से देखें, हम किसी भी सब्सटेंस को कैटलिस्ट कब कहते हैं, हम उसको कैटलिस्ट कब कहते हैं, जब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे और साथ ही साथ वो खुद कंज्यूम ना हो। अब ध्यान से देखें, पहली स्टेप के अंदर बोलो कौन है यहाँ पे है आपका CuCl था, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कैटलिस्ट था, और लास्ट स्टेप के अंदर रीजनरेट कौन हो गया है, आपका CuCl ही रीजनरेट हो गया है। तो इसीलिए आप CuCl को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट एक्ट एज द कैटलिस्ट, ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा इस सैंडवे रिएक्शन के अंदर। देखो CuCl आपका क्या हो गया, ये रीजनरेट हो चुका है, सो इट एक्ट एज द कैटलिस्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन बिल्कुल सैंडवे रिएक्शन जैसी ही है, इसमें कौन है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बोलो कौन था, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हमने ली। कैटलिस्ट कौन था यहाँ पे, Cu, बोलो कौन है यहाँ पे आपका, Cu इज द कैटलिस्ट, Cu यहाँ पे कैटलिस्ट है। और रिएजेंट बोलो हमने कौन लिया है यहाँ पे, HCl। तो उसी टाइप से रिएक्शन क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो जो इसका मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देखा, देखो उसमें सबसे पहले क्या जनरेट होगा उसी टाइप से, देखो ये Cu रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, Cl जो नेगेटिव है उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देखो डोनेट किए Cu को, तो क्या बन गया, CuCl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस पे आया, Cu के ऊपर। अब ये जो CuCl नेगेटिव बना उसी टाइप से ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसमें नाइट्रोजन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पोस्टली चार्ज नाइट्रोजन एटम उसी टाइप से N बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो एंड ये नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर देखो अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस टाइप से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, बोलो ये नाइट्रोजन अपनी तरफ। तो इस पिछले कार्बन पे नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा क्योंकि साइमल्टेनियसली जो ये CuCl नेगेटिव है इसमें कॉपर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो हाफ एरो से हम शो करेंगे यहाँ पे, देखो हाफ एरो से अटैक होते हुए दिखाया, मींस Cu के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इस एंड नाइट्रोजन को दे दिया जाएगा। अब इसके ऊपर देखो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। आगे बनी हुई स्पीसी में आप देखेंगे, देखो और निकल कौन गया आपका CuCl। तो इस टाइप से ये नाइट्रोजन इसके ऊपर कौन आ गया, बोलो ओड इलेक्ट्रॉन। अब ये एक अनस्टेबल स्पीसी है, तो ये अनस्टेबल स्पीसी है तो क्या होगा, दोबारा से वही देखो सेम मैकेनिज्म जो हमने पीछे गटरमान रिएक्शन के साथ साथ किस में देखा था, पीछे सैंडमेयर में देखा, डी डाई एजोटाइजेशन जो रिएक्शन थी उसमें आपने देखा CN बॉन्ड का दोबारा से होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, और होमोलाइटिक क्लीवेज होने से यहाँ पे देखो कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे उसी टाइप से आपकी नाइट्रोजन गैस देखो रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस जो रिलीज हुई देखो आपके उसी टाइप से कोवलेंट बॉन्ड बना, म्यूचुअल शेयरिंग से नाइट्रोजन ने अपना ओड इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे CN बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स भी आया, नाइट्रोजन गैस रिलीज, और क्या बन गया आपका फिनाइल रेडिकल। बोलो कौन बन गया आपका यहाँ पे फिनाइल रेडिकल। अब ये फिनाइल रेडिकल फर्दर क्या करेगा, देखो ये हमने हाफ एरो से दिखाया, देखो किस टाइप से नाइट्रोजन गैस आपकी रिलीज हुई थी। दोबारा से आपका वही CuCl, देखो जो आपके सेकंड स्टेप के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या जनरेट हुआ आपका CuCl। अब दोबारा से देखो इसका होमोलाइटिक देखो ये क्लीवेज होगा, देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, यहाँ पे जो Cl फ्री रेडिकल है यहाँ पे ये जनरेट होगा, यहाँ से Cl फ्री रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ आपका कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा, देखो ये हमने हाफ एरो से शो किया, और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया उसी टाइप से क्लोरोबेंजीन, और रीजनरेट कौन हो गया, देखो Cu। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर भी जो कॉपर है वो किस चीज का काम कर रहा है, इट एक्ट एज द कैटलिस्ट।
तो इस रिएक्शन में देखो कॉपर जो है वो लास्ट में क्या हो गया आपका रीजनरेट। जैसे आपने सेंडमेयर रिएक्शन में देखा था CuCl था, तो CuCl आपका लास्ट स्टेप के अंदर रीजनरेट हो गया था। तो इसलिए आप ऐसे सब्सटेंस को जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे और इट सेल्फ गेट रीजनरेट इन द लास्ट स्टेप, तो बिल्कुल लास्ट में देखो रीजनरेट हो गया, तो ऐसे सब्सटेंस को आप कैटलिस्ट कहते हैं। तो सेंडमेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन था आपका CuCl। गटरमान रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट कौन है Cu इज द कैटलिस्ट। तो इस टाइप से नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। देखो गोमबर्ग बेकमान रिएक्शन, इसमें आपने देखा था कि बेंजीन डाइजीन क्लोराइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन, तो वहां पे हमने जो बताया था आपको कि बाइफिनाइल ही बनता है। क्या बनता है बोला आपका बाइफिनाइल। तो वो किस टाइप से बनता है आपको ये भी नजर आता है, यहाँ पे NaOH डाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक जो प्रोडक्ट है वो आपका फिनोल बन जाए कि NaOH जो है, लेकिन वो सिर्फ तब बनता है आपका फिनोल। कब बन सकता है वो सिर्फ तभी बन सकता था अगर अकेला बेंजीन डाइजीन क्लोराइड होता, लेकिन वो फिनोल भी नहीं बनता। हम आपको एक चीज यहाँ पे याद दिला दें जो हमने आपको पहले बताई है, देखो वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास ये अकेला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड देखो इस टाइप से होता, ये एंड पॉजिटिव देखो Cl नेगेटिव और मीडियम अगर हम बेसिक कर दें, तो जो कपलिंग रिएक्शन अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, अगर हाईली बेसिक मीडियम में कपलिंग रिएक्शन नहीं चलती, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता, वो इसलिए कि आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे हमें जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन उस पे देखो लगाना है, यहाँ पे इस पे हमने ठीक कर दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम है ये NN जो पाई बॉन्ड उनको देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, OH नेगेटिव अटैक कर देता है डायरेक्ट, यहाँ पे एजोनेट्स बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीसी बनती है वो एजोनेट्स बन जाते हैं। इसलिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड यहाँ पे फ्री नहीं बचता। देखो क्या बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड फ्री फॉर्म में है? नहीं, ये फ्री फॉर्म में नहीं है। फर्दर रिएक्शन फॉर द कपलिंग रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन का रीजन था कि बेसिक हाईली बेसिक मीडियम में क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज एजोनेट्स। देखो ये एजोनेट्स कहलाते हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं। तो हाईली बेसिक मीडियम में जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, ये रिएक्शन भी हो गई बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की, हाईली बेसिक मीडियम कर दे तो क्या होगा, एजोनेट्स विल बी फॉर्म। तो इस टाइप से एजोनेट्स बन जाते हैं AZONATES। तो एजोनेट्स यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे हमने NaOH के साथ साथ क्या डाला है, बेंजीन रिंग है यहाँ पे। तो इसीलिए जो आपकी जो रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, जिसमें आगे आपका बोलो कौन बनेगा, बाइफिनाइल। देखो बाइफिनाइल इज द प्रोडक्ट, लेकिन ये बाइफिनाइल कैसे बना, ये बाइफिनाइल ऐसे बना कि देखो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, जो बेंजीन डाइजीन क्लोराइड है इसमें जो हमने डाला था बोलो कौन, OH नेगेटिव का। अगर हम अकेला OH नेगेटिव आयन डालते तो क्या होता, आपके एक पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन वो कब है मैंने बताया, इन द हाईली बेसिक मीडियम। इसलिए जो हम बेसिक मीडियम हाईली बेसिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाईली बेसिक करते ही साथ ये बेंजीन डाइजीन क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया एजोनेट्स के अंदर। इसलिए बेसिक मीडियम हाईली बेसिक मीडियम नहीं रखना आपको। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने ये एरो दिखाया यहाँ पे, ये एरो देखो मैंने बताया था आप खुद सोचें, अभी मैं इसको करेक्ट करूंगा। देखो जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम है उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपनी तरफ ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब जो एंड नाइट्रोजन इस पे बोलो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रलाइज बोलो कैसे हो, जब इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आपने अब बिल्कुल सही सोच लिया होगा कि OH नेगेटिव जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो हाफ एरो से हम शो करेंगे, हाफ एरो से हम शो करेंगे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया, OH फ्री रेडिकल देखो निकल जाएगा। और बोलो कौन सा ग्रुप लग गया यहाँ पे, OH। या हम डायरेक्ट एजोनेट्स भी बना के दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप दोनों टाइप से इसके मैकेनिज्म को शो कर सकते हैं। या तो आप इसको वैसा ही रख सकते हैं जैसा कि हमने किस में देखा था, सेंडमेयर और गटरमैन में। या हमने देखो डायरेक्ट फुल एरो दिखाएं, देखो मैंने इसको फुल एरो से अब दिखा दिया मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि फुल एरो से दिखा, एजोनेट्स बन गए। बोलो कौन बन गए, ये एजोनेट्स। अब एजोनेट्स बन गए, उसके बाद अब क्या होगा, अब होगा ये होगा वही काम जो मैंने आपको बताया था। दोबारा से देखो क्या बना यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, वहां पे ये फ्री रेडिकल बनता था, नाइट्रोजन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी बनती थी। यहाँ पे देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, CN बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज, N और O के बीच का होमोलाइटिक क्लीवेज। दोबारा से वही नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, और नाइट्रोजन गैस के इवॉल्व होने से बोलो देखो ये OH फ्री रेडिकल जो मैंने बताया था। अब दोनों टाइप से मैकेनिज्म को शो कर सकते हैं। तो ये आपका बोलो क्या बना यहाँ पे, आपके फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। बोलो कौन बन गया, फिनाइल रेडिकल बन गया आपका यहाँ पे। तो ये जो फिनाइल रेडिकल यहाँ पे बन गया, अब कौन आएगा, दूसरा बेंजीन रिंग आएगा। ये रिएक्शन लगभग अब आपको वैसी महसूस होगी जैसे कि आपकी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही हो। तो अब देखो क्या हुआ,
आपके जो फिनाइल फ्री रेडिकल जो बना है, जो बेंजीन रिंग आया, बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का क्या हुआ बोलो, होमोलाइटिक फिशन हुआ, वहां पे पाई बॉन्ड देखो एक टूट जाएगा यहाँ से। तो ये जो आपका बेंजीन रिंग दूसरा आया है, होमोलाइटिक फिशन होगा वहां से, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से फिनाइल रेडिकल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग का दूसरे बेंजीन रिंग के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बन गया। और जो सेकंड बेंजीन मॉलिक्यूल आया था, उसके कार्बन के ऊपर देखो एक इलेक्ट्रॉन तो उधर पीछे बच गया, तो अभी उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अब उसके ऊपर आ गया फ्री रेडिकल। जैसे कि हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, वहां पे हम क्या करते थे कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, और जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है आके बेंजीन रिंग के ऊपर, उसी कार्बन से लास्ट स्टेप में क्या निकलता था, H पॉजिटिव आयन निकलता था। वो बेसिक मैकेनिज्म था, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो अटैक हुआ है इलेक्ट्रो, जो फाइल का जैसे वहां पे अटैक होता था बेंजीन रिंग के ऊपर, तो बिल्कुल वैसा ही आपका चल पड़ा। यहाँ पे बोलो क्या होगा, H फ्री रेडिकल यहाँ पे निकलने वाला है। तो ताकि ये दोबारा से स्टेबल स्पीसी बन जाए, बेंजीन दोबारा से एरोमेटिक हो जाए। तो देखो ये जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन जिसके पास बोलो कौन है, फ्री रेडिकल, इसका एडजेसेंट कार्बन, वो कार्बन जो दूसरे बेंजीन रिंग से अटैच है, उसके ऊपर ही हमने CH बॉन्ड दिखाया। अभी CH बॉन्ड का क्या होगा दोबारा से, होमोलाइटिक फिशन। देखो होमोलाइटिक फिशन होगा, और होमोलाइटिक फिशन होगा तो देखो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड का, एक बेंजीन रिंग वाला देखो इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में देखो दोबारा से डबल बॉन्ड बाइफिनाइल बन गया। लेकिन जो फ्री रेडिकल निकला है बोलो वो कौन निकला, वो फ्री रेडिकल जो यहाँ से निकला वो है आपका H फ्री रेडिकल। देखो H फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो गया, ये आप करेक्शन कर लेंगे, H फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो गया। और प्रोडक्ट बोलो आपका कौन बन गया, बाइफिनाइल। बोलो कौन बन गया आपका, बाइफिनाइल। अब देखो एक चीज और हम आपको बता दें, जो अभी आपने जो मैकेनिज्म देखो वो कहलाता मेथड्स टू डिटरमाइन द, मेथड्स टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो ये तो हो गया मैकेनिज्म जो पाया गया कि हाँ ऐसा बनता है। जैसे ये आपके एजोनेट्स बनते हैं, तो देखो यहाँ पे बोलो कौन बना, एजोनेट्स। ये क्या बन गए बोलो, आपके एजोनेट्स बन गए ना, आपके एजोनेट्स बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि देखो जैसे मैंने आपको पिछले मैकेनिज्म बताया कि OH जो नेगेटिव है, अब हम हाफ एरो से देखो शो करते हैं इस टाइप से, देखो ऐसे हाफ एरो से, देखो ऐसे हाफ एरो से एक इलेक्ट्रॉन ये उस नाइट्रोजन को दे देता जिसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आना ही था। तो अब क्या बनता देखो उसी टाइप से N, ये डबल बॉन्ड, और ये N, एक इलेक्ट्रॉन मिलके उसके पास क्या आता देखो ऑड इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं उसी टाइप से। अब अगली स्टेप के अंदर देखो उसी टाइप से होमोलाइटिक फिशन होता, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता, हाफ एरो से दिखा है, हाफ एरो से इधर, बोलो कौन सी गैस निकलती है उसी टाइप से, उसी टाइप से देखो नाइट्रोजन गैस आपकी निकल जाती जैसे प्रीवियस मैकेनिज्म के अंदर आपने देखा था। और उसी टाइप से देखो फिनाइल रेडिकल बन गया, और फर्दर रिएक्शन उसी टाइप से होगी। इस फिनाइल रेडिकल के ऊपर अटैक कौन करेगा, फिर बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग जब अटैक करता है तो बेंजीन रिंग के कार्बन कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है होमोलाइटिक फिशन से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके फिनाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही यही है, क्योंकि हमारे पास फिनाइल रेडिकल है, उसके पास एक अपना अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा, और वो होमोलाइटिक फिशन से ही हो सकता है, क्योंकि फिनाइल फ्री रेडिकल वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो दूसरी जो स्पीसी आएगी वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ही आए, तभी तो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जिसमें 2 ही ऑर्बिटल होते हैं देखो, और 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, तभी बनेगा नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड आपका जो बन जाएगा। और फाइनली आगे जैसे मैंने बताया, आप इसको वैसे ही समझ के याद करें जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप याद करते थे बेंजीन रिंग की, कि इस बेंजीन रिंग ने जिसने अटैक किया आप उसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करें, कि देखो बेंजीन रिंग फिनाइल फ्री रेडिकल के ऊपर देखो ये अटैक हो गया, फिनाइल फ्री रेडिकल जो आया, फिनाइल फ्री रेडिकल जो बना है यहाँ पे, इस फिनाइल फ्री रेडिकल को आप क्या माने, इस फिनाइल फ्री रेडिकल को आप इलेक्ट्रोफाइल माने, और इसका अटैक हो गया उस बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करते थे, इलेक्ट्रोफाइल, और जिस कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग के जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, लाइक यहाँ पे फिनाइल रेडिकल अटैक कर रहा है, तो उसी कार्बन से बोलो क्या रिलीज होता है, फिर उसके बाद देखो बेंजीन रिंग के ऊपर देखो फ्री रेडिकल आ गया। एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन करनी होती है, ये आप जरूर ध्यान रखें, बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड का तो क्लीवेज हो गया, लेकिन वो अपनी एरोमेटिसिटी को जरूर मेंटेन करेगा। तो मेंटेन कैसे करे, H फ्री रेडिकल लॉस्ट हो गया उसी कार्बन से जिससे 2 बेंजीन रिंग देखो आपस में अटैच हुए थे, ताकि वहां पे दोबारा से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, और इस टाइप से बाइफिनाइल आपका बन गया। तो ये था मैकेनिज्म कोमबर्ग बेकमान रिएक्शन का।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन के अंदर, जो एक रिडक्शन रिएक्शन थी, हमने आपको बताया था। SnCl2 देखो HCl की प्रेजेंस में या Na2SO3 डाल दें, आपका फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, ये हमने लिया सोडियम जो सल्फाइट जैसे हमने ले लिया, सोडियम सल्फाइट जो है उसमें आपका Na पॉजिटिव आयन होते हैं और SO3 2 नेगेटिव आयन आपके हो गए, ये सल्फाइट आयन है। उसी टाइप से देखो रिएक्शन चली, देखो क्या हुआ यहाँ पे, सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच में, देखो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है सल्फाइट आयन के अंदर, उसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, जो ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किए, सल्फर की तरफ। क्योंकि आपको दिख रहा है सल्फर जो है आपका एलिमेंट ये ग्रुप नंबर 16 के अंदर है, ग्रुप नंबर 16 के आखिर में आपको 6 दिख रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो जो मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकता है सल्फर वो कितनी है, 6। SO3 2 नेगेटिव के अंदर आप देख रहे हैं सल्फर के 4 ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन के बीच और फिर 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 4 ही बॉन्ड है। तो इट मींस ये अपनी फर्दर वैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो देखो वो किया कैसे, वो आपको ध्यान देना है। देखो अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है एक बॉन्ड बना ले, सल्फर के पहले से 4 बॉन्ड है, बोलो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 है, एक बॉन्ड और बनने से 5, लेकिन 5 तो सल्फर बनाएगा नहीं, है तो 6 बॉन्ड बनाएगा। 6 बॉन्ड कैसे बने, अब जो सल्फर के ऊपर जो हमने लोन पेयर दिखा रखा है, क्यों दिखा रखा है, देखो लोन पेयर, देखो मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे कि देखो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल के अंदर देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे विच आर इन द फॉर्म ऑफ बोलो क्या, लोन पेयर ही होते हैं। तो ये लोन पेयर अब 6 बॉन्ड कैसे बनाए, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सल्फाइट आयन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज का मतलब कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे, नेगेटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सीजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मींस लोन पेयर को ही अब माने उसे, और ऑक्सीजन के पास अपने नॉर्मल लोन पेयर तो 2 हैं ही, ऑक्सीजन का देखो एक लोन पेयर, या ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास होते ही है। लेकिन ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या था, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर कहां से आया, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, जो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है उसकी वजह से। अब यही एक्स्ट्रा चार्ज वाले जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये डोनेट किए सल्फर की तरफ, सल्फर के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, सल्फर अपने 6 बॉन्ड कैसे बनाए, क्योंकि या तो ये 4 बनाएगा या 6 बॉन्ड, उसने अपने देखो लोन पेयर डोनेट कर दिए, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बन गया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन को डोनेट करेगा तो अब क्या होगा, अब जो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम था उसके लिए अब चांस है कि वो नाइट्रोजन के बीच जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अपस्टेट कर ले और वो न्यूट्रलाइज हो जाए, दोबारा से उसका पॉजिटिव चार्ज देखो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये आपने देखा ये बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और सल्फर के बीच। जैसे हमने पीछे बेसिक मीडियम में रिएक्शन की थी कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ थी, बेंजीन के साथ, इन बेसिक मीडियम इन NaOH, जिसमें आपने देखा था वहां पे एजोनेट्स बन जाते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे ये आपका सल्फाइट जो ग्रुप था ये अटैच हो गया। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर उसी टाइप से कुछ होगा, बोलो क्या होगा यहाँ पे, ये जो सल्फाइट आयन देखो दोबारा से मैंने दिखाया, अब ये क्या करने वाला है यहाँ से, ये दोबारा से सल्फर जिसके पास बोलो कौन है, ये लोन पेयर है, 4 बॉन्ड है, लोन पेयर, बोलो किस पे अटैक किया आपकी बार इसने, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन एटम है उसके पास, उसके ऊपर देखो अटैक किया, अटैक करने से क्या होगा, उस नाइट्रोजन के ऊपर तो देखो क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी आपके 4 बॉन्ड हो जाएंगे, उसके ऊपर 4 बॉन्ड वो ताकि उसके ना बने, उसका एडजेसेंट जो नाइट्रोजन एटम था उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज, देखो आपने देखा नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज, 2 सल्फाइड ग्रुप लग गए, एक सल्फाइड ग्रुप कहाँ पे लगा, SO3 जो ग्रुप कहाँ पे लगा, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर, और जो दूसरे जो SO3 ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, दूसरे नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक आपका SO3 ग्रुप लग गया है यहाँ पे। अब आगे हम क्या करें, सिंपल यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करें इन एसिडिक मीडियम, तो करते ही साथ सिंपल देखो वही है कि एक साइड में H लगना है दूसरी साइड में OH, तो जो ये बेंजीन रिंग से अटैच देखो जो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे तो देखो इनके ऊपर तो H लग जाएगा, देखो इधर तो इनके ऊपर तो देखो H अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कितने H लगने हैं, देखो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक H देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर लग गया NH, और ये जो नेगेटिवली चार्ज वाली नाइट्रोजन है देखो 2H आपके इधर लग जाएंगे, 2H इधर आ जाएंगे आपके, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा मींस इधर तो बोलो कौन लगे आपके H पॉजिटिव, वाटर के H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन जो साइड में आपका
जो ग्रुप लगे उनके ऊपर लग जाएंगे। मेन हमारा इशू वही रहा कि हमें क्या बनाना था, फिनाइल हाइड्रोजीन। उस प्रोडक्ट को आप माइंड में रखेंगे और इस टाइप से डायरेक्ट बन गया, बोलो कौन, फिनाइल हाइड्रोजीन इज द प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आपकी कंप्लीट रिएक्शन हुई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रिएक्शन जो बेंजीन डाइजीन सॉल्ट शो करता है। देखो ये रिएक्शन कुछ हम दोबारा से देखो आपके सामने शो कर रहे हैं, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। आपका दोबारा से छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। देखो अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो आपका फिनोल बनता है, जिंक डस्ट डालें तो ऑक्सीजन को ले जाए, आपका पास बेंजीन बन गया। अगर आप डायरेक्ट H3PO2 डाल दें तो आपका डायरेक्ट बेंजीन भी बन सकता है। फर्दर देखो रिएक्शन और देखते हैं जो कन्वर्जन में पूछी जा सकती है कि कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू द नाइट्रोबेंजीन। तो आप क्या करें, आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट, मैंने बताया था आपको, NaNO2 डाल दें तो भी आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, या आप इसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट करें, फिर सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन और NO2 ग्रुप आपके बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा। या बेंजीन रिंग और कौन सी रिएक्शन दिखाता है, या देखो फर्दर अगर हम रिडक्शन कर दें इसकी तो क्या होगा, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, NH2 ग्रुप के अंदर, तो एनिलीन बन गया। तो इस तरह से आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनिलीन में। और ये आपने देखा था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो है ये खुद ही एनिलीन से प्रिपेयर होता है बाय द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो एनिलीन में हम क्या डालते थे, बोलो, NaNO2/HCl एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन थी जो कि आपका ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो सिंथेसाइज किया था, ये खुद हमने एनिलीन से ही सिंथेसाइज किया था। अब देखो नेक्स्ट बेंजीन के अंदर ही देखें, बेंजीन और किसमें, बेसिक पांचों रिएक्शन हम देखेंगे बेंजीन की। अगर हम सल्फोनेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो ये कौन बन गया यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखो बन गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाइजीनियम क्लोराइड ग्रुप को हटाएं। कैसे हटाएं, H3PO2 डाल के इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, बताया था Cu+1 आयन होता है। बोलो कौन सा आयन आप साथ में यहाँ पे डालते हैं, मैकेनिज्म में भी आपने देखा था Cu+1 आयन। फिर बेंजीन, बेंजीन में आप डायरेक्ट सल्फोनेशन कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर चुके हैं। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में अगर आप सेंडवे रिएक्शन कर दें CuCl/MeHCl, या गटरमान रिएक्शन कर दें CO/MeHCl तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। या आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करें, पहले बेंजीन में H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu+1 आयन, तो बेंजीन रिंग उसमें सिंपल रिएक्शन हेलोजिनेशन कर दें तो देखो क्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। तो Cl2/AlCl3 रिएजेंट या पहले से पढ़ चुके होते हैं, आपने डाला, क्योंकि AlCl3 यहाँ पे हेलोजन कैरियर का काम करता है। जो Cl-Cl के बीच में जो बॉन्ड है, देखो Cl-Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है, वन ऑफ दी Cl को ये AlCl3 लेविस एसिड ऑब्स्ट्रक्ट कर ले जाता है, Cl नेगेटिव आयन को, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और इस तरह से क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। और ये रिएक्शन देखो हम दोबारा से आपके सामने लिख दी जो हम पहले ही सीख चुके हैं। सेंडवे रिएक्शन या गटरमान रिएक्शन के द्वारा भी आप क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन में अगर आप एल्काइलेशन करते हैं, RCl, R की वैल्यू CH3 हो सकती है, C2H5, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहें, और आपके पास यहाँ पे मिथाइल बेंजीन बनाना है तो R की वैल्यू हमने क्या पुट की, बोलो यहाँ पे CH3। तो अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू बोलो CH3 पुट कर दें तो बोलो क्या हुआ, आपका मिथाइल बेंजीन में स्टोल्विन बन जाएगा। अगर आप C2H5 करते तो क्या लग जाता, इथाइल बेंजीन बन जाता। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी एसाइलेशन रिएक्शन, आपका उसी टाइप से देखो ये AlCl3 एनहाइड्रस हम जो लेते हैं ये क्या करता है, ये Cl को ले जाता है विद इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्काइलेशन में भी AlCl3 किसको ले गया, Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले गया, तो R पॉजिटिव देखो पीछे बन जाता है एल्काइलियम आयन, यहाँ पे एसाइलियम आयन बन जाएगा। जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे एसिटोफिनोन आपका प्रोडक्ट बन गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू मिथाइल बेंजीन या इनटू एसिटोफिनोन। तो इस तरह से ये कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए। इसलिए बैक जो रिएक्शन थी सिंपल बेंजीन की, वो पांचों रिएक्शन भी हमने आपको यहाँ पे करके दिखाई। बेंजीन की 5 रिएक्शन कौन थी, आपकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रिडल-क्राफ्ट आपकी लास्ट थी एसाइलेशन। और जो आपके बेंजीन रिंग खुद हमने कहां से बनाया था, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से। तो मींस की कन्वर्जन आपके पूछे जा सकते हैं कि कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या आपका मिथाइल बेंजीन या टोल्विन, या एसिटोफिनोन। तो इस टाइप से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, जो आपके पास फिनोल बना है आपका फिनोल,
अगर हम उसमें देखो कौन सी रिएक्शन कर दें, रिमल्टीमल रिएक्शन कर दें, तो कोई ये कन्वर्जन भी आपसे फर्दर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फिनोल बना, अगर आप इसमें रिमल्टीमल रिएक्शन कर दें, फिनोल बोलो किस में कन्वर्ट होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड में। सैलिसिल एल्डिहाइड में तो आ सकता है कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनिक क्लोराइड इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन डाइजीनिक क्लोराइड को फिनोल में कन्वर्ट, उसके बाद रिमल्टीमल रिएक्शन करते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर आप चाहें बेंजील्डिहाइड बनाएं, तो जो सैलिसिल एल्डिहाइड बना है इसके ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ उसको आप रिमूव कर दें। बोलो कैसे रिमूव करते हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर पहले से है। फिनोल को आपने कैसे कन्वर्ट किया था बेंजीन के अंदर, जिंक डस्ट डाल के, मींस OH ग्रुप का ही तो आपने हटाया था। इसी टाइप से सैलिसिल एल्डिहाइड में भी तो OH ग्रुप को हटाना है, सेम रिएजेंट जिंक डस्ट डाल दें तो आपका OH ग्रुप हट गया और क्या बन गया बोलो, ये आपका बेंजील्डिहाइड बन गया। अगर आप फर्दर इसमें अमोनिया डाल दे, कई बार पूछ लेते हैं, तो इमीन्स बन जाएंगे। देखो अमोनिया डाला तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर से बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से O और NH3 के अंदर से H2, तो H2O वाटर लॉस, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इमीन्स बन गए। फर्दर देखो जो आपकी फिनोल था जिसको हमने रिमल्टीमल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। अगर आप क्लोरोफॉर्म जैसे पहले हमने डाला था, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है CHCl3 में KOH, अगर आपने CHCl3 में KOH डाला तो क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर आप फिनोल में क्या डाले, CCl4 में KOH डाले, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। OH के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन के रिस्पेक्ट में कौन सा ग्रुप लगेगा, COOH, तो सैलिसिलिक एसिड है। अगर आपसे ये पूछ लें सैलिसिलिक एसिड को दोबारा वही कन्वर्ट करें किसके अंदर, फिनोल में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करें, COOH ग्रुप को हटा दें। बोलो कैसे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से। क्या डालते थे आप उसमें, NaOH में CO, देखो ये हमने लिखा NaOH में, बोलो क्या डालते हैं आप, CaO। तो सैलिसिलिक एसिड को आप दोबारा फिनोल में कन्वर्ट, फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, रिमल्टीमल रिएक्शन से। सैलिसिलिक एसिड को वापस कैसे कन्वर्ट करें फिनोल में, NaOH में CO डाल के। अब जो सैलिसिलिक एसिड आपके पास बन गया है यहाँ पे, इस सैलिसिलिक एसिड को हम चाहते हैं किसमें कन्वर्ट कर दें आगे, OH ग्रुप को हटाना चाहते हैं बेंजोइक एसिड ताकि बन जाए। तो देखो ये हम क्या डालेंगे दोबारा से OH ग्रुप को हटाने के लिए, जिंक डस्ट। बोलो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड जो आपके पास यहाँ पे बन गया है, अब पेपर में क्वेश्चन, आप एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू बेंजोइक एसिड। तो आप क्या करें, पहले बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को फिनोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसमें रिमल्टीमल रिएक्शन करते हैं, सैलिसिलिक एसिड आपके पास, फिर जो सैलिसिलिक एसिड बना उसमें क्या डाला, जिंक डस्ट, और फिर आपके पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। आप इसको अल्टरनेट मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस पहले आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में, जैसे हमने आपको पहले बताया था, KCN लगाएं, अभी हम बताएंगे आपको, KCN डालें और KCN डाल के फिर क्या करें, CN ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दे, CN ग्रुप सीधा CH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलो इसमें डायरेक्ट आप क्या डाल सकते थे, इसके अंदर आप KCN डालें, KCN डालने से बोलो कौन सा ग्रुप लग जाएगा, बोलो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया बेंजीन रिंग के ऊपर CN ग्रुप लग जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो CN ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। आप ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को आप बेंजोइक एसिड में इस पाथ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो बेंजोइक एसिड आपके पास मिला उसके अंदर अमोनिया डालते तो क्या होगा, OH ग्रुप हटेगा और बोलो कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NH2 ग्रुप। देखो वाटर लॉस होगा यहाँ से, बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से, वाटर लॉस। देखो H2O लिख दें आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बेंजोइक एसिड के अंदर से देखो इधर से OH और अमोनिया का H, और OH हटा और कौन सा ग्रुप लगा बोलो, NH2, तो बेंजोमाइड मिल गया हमें। अब जो बेंजोमाइड मिला हमें, अगर हम ये चाहें इसको बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर दें, देखो जो बेंजोनाइट्राइल बना हुआ है नीचे, आप क्या कर सकते हैं, जो बेंजोनाइट्राइल देखो यहाँ पे बना, आपने रिएजेंट एक पढ़ा था जिसका नाम बोलो क्या था, P2O5, विच इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप हीट कर दें, देखो इस टाइप से बेंजोमाइड के अंदर से बोलो क्या लॉस हो जाएगा, ये वाटर लॉस इस टाइप से, तो बेंजोनाइट्राइल आपका बन गया। तो मीन्स आपको सारे पाथ आने चाहिए। तो देखो हमने क्या डाला इसके अंदर, P2O5, देखो इसको लिखे हुए को हटा देते हैं, डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे P2O5, बोलो क्या बन गया आपका, बेंजोनाइट्राइल। देखो जो मैंने ड्रा किया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपके पास बेंजोनाइट्राइल है, देखो ये बेंजोनाइट्राइल आ गया। अब जो बेंजोनाइट्राइल कैसे बन सकता है, देखो मैंने पहले दिखाया था, देखो अब मैंने ये एरो लगा दिया, टाइप फॉर्म में आ गया आपका, KCN डालें तो डायरेक्ट आपका बेंजोनाइट्राइल। अब जो बेंजोनाइट्राइल बना इसको बेंजोइक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजोअमाइड में भी। देखो हमने दिखाया हाइड्रोलाइसिस, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बोलो कौन सी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बेंजोनाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। देखो थोड़ा आपको आइडिया मैं फिर से दे दूं, यहाँ पे ये आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड, देखो N, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। मैं पहले पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के दौरान नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बच जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास H पॉजिटिव, C के पास बोलो क्या, OH नेगेटिव, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर दूसरा भी ब्रेक हुआ तो यहाँ पे H पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव, दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो गया,
बोलो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। बोलो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। तो देखो CuNH2 बन गया। बोलो कौन बन गया आपका, CuNH2। देखो बेंजामाइड जो हमने बताया, दैट इज द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, देखो मैं बताता हूँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, देखो मैंने वहां पे लिखा, देखो जो मैंने अपना लिखा हुआ हटा दिया वहां से। देखो क्या किया मैंने, H2O लिखा, H पॉजिटिव। बोलो कौन सी हाइड्रोलाइसिस हो रही है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो बेंजोइक एसिड बना, एक लास्ट बॉन्ड भी ब्रेक कर दे, देखो H पॉजिटिव, और इधर मैंने क्या लिखा, बोलो OH नेगेटिव। उसी टाइप से देखो वाटर लॉस, लेकिन अब की बार क्योंकि तीनों बॉन्ड टूट गए कार्बन नाइट्रोजन के, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, अमोनिया। देखो यहाँ से अमोनिया विल बी द साइड प्रोडक्ट, और आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये आप जरूर ध्यान रखें किस तरह से कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस को आप शो कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप कैसे उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी, तो ये जो बेंज एमाइड है, इस बेंज एमाइड के अंदर अगर हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, या आप क्या डाल दें इसमें, सोडियम इथेनॉल डाल दें, तो क्या होगा यहाँ पे C और O के बीच का देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ इस टाइप से, दोनों साइड में देखो मैंने H दिखा दी, वाटर लॉस होगा देखो वहां से, और नीचे कार्बन के ऊपर भी क्या लग जाएंगे, देखो H के ऊपर रिडक्शन कर रहे हैं तो बेंजाइल एमीन बन जाएगा। बोलो कौन बन गया आपके पास, बेंजाइल एमीन। यही बेंजाइल एमीन आप बेंजोनाइट्राइल से भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हम बेंजोनाइट्राइल को भी बेंजोएलेमिन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। बोलो कैसे, उसी टाइप से देखो रिडक्शन हुई जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा इधर देखो, इधर 2H, C की तरफ भी 2H, तो क्या बन गया CH2NH2, तो बेंजाइल एमीन बन गया आपका। क्या बन गया आपका, ये बेंजाइल एमीन। तो ये थी आपकी डिफरेंट और रिएक्शन जो हमने अब आपको बताई। अब हम कुछ देखते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड शो करता है, जो पहले हम आपको एमीन्स वाले पार्ट के अंदर और फिनोल वाले पार्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुके होते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कपलिंग रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कपलिंग रिएक्शन अब है क्या। तो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड लिया, रिएक्शन बोलो किसके साथ की हमने, पहले जो रिएक्टेड लिखा था बोलो कौन है, एनिलीन के साथ रिएक्शन चली। और जो कि एनिलीन जो है वो कैसा होता है, बोलो बेसिक इन नेचर, चाहे वो लो बेसिक हो लेकिन बेसिक होता है। तो इसलिए पीएच हमें कितनी रखनी पड़ी, एसिडिक पीएच हमें कैसी रखनी पड़ी, बोलो एसिडिक पीएच, और वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं, इन द रेंज ऑफ 4 to 5। अगर इससे ज्यादा एसिडिक कर देते हैं तो भी कपलिंग रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर ज्यादा बेसिक कर दे तो हमने पीछे पढ़ा था एजोनेट्स बन जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी देखो ये एजोडाई बन जाती है। एजोडाई चली कैसे, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये जो आपका एनिलीन है, इसमें NH2 के ऊपर जो NH2 ग्रुप है इसका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, या तो ऑर्थो पे देखो, ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ये हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज अ बल्की ग्रुप, सो इट कैन नॉट अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, सो इट विल अटैक ओनली एट द पैरा पोजीशन। इसलिए पैरा के थ्रू ही प्रोडक्ट बनेगा। आपको दिख रहा है देखो ये जो इतना बड़ा ये ग्रुप है, देखो इसके अंदर ये तो हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ग्रुप है। देखो ये कहाँ पे लगा, एनिलीन की बोलो कौन सी पोजीशन है, दैट इज द पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन के ऊपर ही देखो अटैक हुआ है। अब ये हुआ कैसे वो हम देखते हैं, वो इसका मैकेनिज्म कहलाएगा। देखो सबसे पहले होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसकी रिएक्शन बोलो किसके साथ, एनिलीन के साथ। देखो प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे इंक्रीज करेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। देखो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि पैरा पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे कैसे। देखो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, पहली बात तो ये सोचने की है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवा भी सकता है कि नहीं, करवाएगा बिल्कुल, बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द नाइट्रोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ, बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। देखो इसने लोन पेयर आगे डोनेट किए, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ बोलो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। आप ये ध्यान रखिए कि कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड ही होते हैं। देखो 2 बॉन्ड इधर, 2 ये 3 और ये 4, राइट। कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और बनने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा जरूर। कौन सा टूटे, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट हुए। ऐसा करने से जो नेक्स्ट कार्बन था, देखो यहाँ पे उस कार्बन के देखो पहले से गिनो 4 बॉन्ड ही थे, देखो 1 2 3 4th मैंने अभी दिखाया। अब क्या होगा, अब इसके तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो दोबारा से आपकी देखो शिफ्टिंग हुई, पैरा पोजीशन तक देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, फुल एरो दिखाया हमने। तो यानी पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे, अब पैरा पोजीशन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो किसको देगा, टर्मिनल नाइट्रोजन को। क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन जब दे देंगे तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, नाइट्रोजन के आपके देखो आपके एक एक्स्ट्रा
यानी उन इलेक्ट्रॉन से इसका बॉन्ड नया बन गया, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम एकदम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उससे क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन के 3-3 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो इस टाइप से आपने देखा, देखो दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था डबल हो चुका है। किसी भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाली नाइट्रोजन थी उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखो नया बॉन्ड बन गया। जो एनिलीन की जो पैरा पोजीशन थी, उस पैरा पोजीशन वाले कार्बन के थ्रू नाइट्रोजन के साथ क्या बन चुका है, बॉन्ड, CN बॉन्ड देखो बन गया। अब हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो एनिलीन की पैरा पोजीशन के ऊपर देखो ये जो ग्रुप अटैच हुआ है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड वाला, अब ये जिस कार्बन से अटैच हुआ उसी कार्बन के ऊपर बोलो कौन अटैच है, यहाँ पे उसी कार्बन के ऊपर अटैच है, यहाँ पे बोलो कौन, आपका हाइड्रोजन। देखो कौन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो ये हाइड्रोजन अटैच है ये क्या करेगा, लास्ट स्टेप के अंदर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल आपका दोबारा से निकल जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल बोलो कौन होगा, H पॉजिटिव है, ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए बेंजीन रिंग की। देखो दोबारा से हमने शिफ्ट किया, देखो डबल बॉन्ड आ गया, दोबारा से उसी पाथ के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। देखो ये नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, और जो नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था वो जो बना था पाई बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। और दोबारा अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने से आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके दोबारा से ये जो बेंजीन रिंग है इसका एरोमेटिक जो नेचर है ये दोबारा से बन गया इसका, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट जो कौन है बोलो, यहाँ पे एजोडाई बन गई आपकी, बोलो क्या बन गई आपकी, ये एजोडाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये कपलिंग रिएक्शन चली, ये कपलिंग रिएक्शन किसके बीच थी, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और एनिलीन के बीच। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और एनिलीन के बीच में जो ये कपलिंग रिएक्शन आपकी चली, जिसमें ये एजोडाई जो बनी है, ये जो प्रोडक्ट बना है, अगर हम वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके बनने को अफेक्ट करते हैं, कब ये रिएक्शन इजी चलेगी और कब ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो दो रिएक्शन इसके अंदर, एक तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और दूसरा आपका जो एनिलीन है, एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, और जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा से ज्यादा हो, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिक्रीज करें बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के ऊपर, उसके ऊपर बोलो क्या इंट्रोड्यूस करके, बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो देखो हमने क्या लिख दिया वहां पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इंक्रीजेस देयर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। जबकि जो आपका एनिलीन वाला बेंजीन रिंग है उस पे देखो कौन से ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपने देखो लगा दिए। सो दिस प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन द एनिलीन इंक्रीजेस देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो ये दो फैक्टर तो ये हो गए कि क्या हो गए, पहला फैक्टर के बेंजीन डाइजीन क्लोराइड के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं और एनिलीन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, ताकि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, और जो एनिलीन वाला बेंजीन रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इंक्रीज करनी है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। ये अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द कपलिंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द एनिलीन एंड द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो इफेक्ट ऑफ पीएच मतलब क्या होता है, मींस हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या होगा, हाईली बेसिक मीडियम कर दे तो क्या होगा। तो अगर हम हाईली बेसिक मीडियम करते तो क्या होगा, हाईली बेसिक मीडियम का मतलब OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे। OH नेगेटिव आयन अगर ज्यादा होंगे तो देखें जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, देखो ये अटैक करेंगे कहाँ पे, जो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप वाला नाइट्रोजन है एंड कार्बन एटम के ऊपर, जिसकी वजह से एजोनेट्स बन जाएंगे। पीछे हमने मैकेनिज्म के दौरान भी इस चीज को सीख लिया है, तो एजोनेट्स बन गए। तो अब जो आपका फ्री आपका बेंजीन डाइजीन क्लोराइड है ये फ्रीली अवेलेबल तो है ही नहीं, क्योंकि अब ये एजोनेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, एंड दस द फ्री बेंजीन डाइजीन क्लोराइड इज नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद द एनिलीन। अब ये है ही नहीं फ्रीली अवेलेबल, तो एजोनेट्स बन गए, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन विल डिक्रीज। अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या होगा, हाईली एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। देखो इस टाइप से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे दी, H पॉजिटिव आयन को, और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में एनिलीनियम आयन आपका बन गया। और इसलिए जो प्लस आर इफेक्ट है जो NH2 ग्रुप का होता है वो प्लस आर इफेक्ट चलेगा नहीं। देखो पहले कैसा इफेक्ट था इसका, प्लस आर, अब ये प्लस आर इफेक्ट इसका बचा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए इसका जो प्लस आर इफेक्ट था वो देखो अब हो गया है डिक्रीज। तो इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द कपलिंग रिएक्शन। बोलो फैक्टर क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे बेंजीन डाइजीन क्लोराइड के ऊपर तो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी।
एनिलीन के ऊपर अगर आप प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगाएंगे तो कपलिंग रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आप हाईली बेसिक मीडियम कर देंगे तो एजोनेट्स बन जाएंगे, तो कपलिंग रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसे हाईली एसिडिक मीडियम कर देंगे तो एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन होने से एनिलीनियम आयन बन जाएगा और प्लस आर इफेक्ट आपका डिक्रीज, और जिसकी वजह से रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थी कपलिंग रिएक्शन इन बिटवीन एनिलीन एंड द बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड। एक चीज और आप साथ के साथ आपको यहाँ पे बता दें कि जो ये कपलिंग रिएक्शन है, अगर मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, अगर कई बार ऐसा आ सकता है कि जो ये मैकेनिज्म हमने यहाँ पे लिखा, ये एनिलीन ना लिख के, देखो एनिलीन ना लिख के अगर ऐसा कर दें, आप ध्यान से स्क्रीन पे देखते जाएं कि यहाँ पे देखो एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या आती है, देखो एक नाइट्रोजन है, इसके ऊपर देखो 2H लगे हुए थे, देखो ऐसे 2H। एनिलीन के साथ रिएक्शन तो आप यही लिख देंगे। अगर ये कह दें एन मिथाइल एनिलीन तो आप क्या करें, नाइट्रोजन के ऊपर जो एक H है वो हटा के बोलो क्या लगा देना, CH3। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो दैट कॉल्ड एन मिथाइल एनिलीन। बोलो ये क्या बन गया, एन मिथाइल एनिलीन। तो बस रिएक्टेंट ही तो चेंज हुआ है, तो एन मिथाइल एनिलीन। अदरवाइज जितने भी हमने एरो मूव करते हुए दिखाए हैं मैकेनिज्म के दौरान भी, और अगर एन मिथाइल एनिलीन ले लें तो सेम मैकेनिज्म रहेगा, सिर्फ एक H हटा के हमने, देखो एक H हटा के सिर्फ क्या लगाया, एक CH3, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम फैक्टर अफेक्टिंग, बिल्कुल सारी चीजें सेम। या अगर हम दूसरा H भी हटा के एक और CH3 ग्रुप लगा दें, मीन्स दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा दें लाइक CH3, तो इसका क्या होगा नाम, एक और H देखो हमने हटा दिया, ये H भी हम हटा दें तो इसका नाम होगा N, क्योंकि दोनों ही CH3 ग्रुप किस पे लगे हुए हैं, बोलो आपके नाइट्रोजन के ऊपर। तो NN डाइमिथाइल, तो क्या बन जाएगा, बोलो ये N डैश डाइमिथाइल एनिलीन। तो बिल्कुल सेम आपका मैकेनिस्टिक पाथवे रहेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि what will happen when benzene diazenyl chloride react with aniline या react with N-methyl aniline या react with NN dimethyl aniline। तो रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ हमने एनिलीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। वो एन मिथाइल एनिलीन भी हो सकता है, वो एन डाइमिथाइल एनिलीन भी हो सकता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ऑप्टिमम जो पीएच चाहिए इस पूरी रिएक्शन के दौरान वो क्या हो, वो आपकी होनी चाहिए आपके, क्योंकि जो एनिलीन आप ध्यान रखें तो बेसिक है तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो ऑप्टिमम पीएच जो हमें चाहिए, आप नीचे एक करेक्शन कर लें, ये आपकी चाहिए 4 to 5। Optimum pH which is required during the coupling reaction in between the aniline and benzene diazenyl chloride is 4 to 5। नेक्स्ट हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की ही किसके साथ, फिनोल के साथ। बिल्कुल सेम एरो होंगे, सिर्फ जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ था वहां पे कौन, जो NH2 ग्रुप लगा हुआ था एनिलीन में, वहां पे कौन आ गया, OH ग्रुप, वही सेम प्लस आर इफेक्ट है। तो सबसे पहले क्योंकि जो फिनोल है उसका नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक है तो पीएच हमें कितनी रखनी पड़ी, बोलो, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है तो कैसी रखनी पड़ी, बेसिक मीडियम। तो पीएच रिक्वायरमेंट इज 9 to 10। और आपका उसी टाइप से देखो वही एजोडाई बनेगी। आपने देख लिया जहाँ पे OH है, यहाँ पे पहले कौन था, बोलो पिछली रिएक्शन में, आपके लास्ट रिएक्शन में NH2 ग्रुप, तो सेम एजोडाई। मैकेनिज्म देखते बिल्कुल सेम मैकेनिस्टिक पाथवे होगा। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड किस चीज का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन फिनोल के साथ। तो इसमें भी उसी टाइप से जो OH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, ऑक्सीजन के पास देखो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट ऑक्सीजन, 16 के आखिर में 6 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन ने देखो 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 लोन पेयर हमने इसलिए दिखाए ताकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर पाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है, 2 लोन पेयर है। तो उसी टाइप से इस लोन पेयर को हम पहुंचते हुए दिखाएंगे पैरा पोजीशन तक। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं। जो OH ग्रुप है इसका उसी टाइप से प्लस आर इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी और पैरा पोजीशन के ऊपर भी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, लेकिन ऑर्थो के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि बल्की ग्रुप है ये बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, ये बल्की इलेक्ट्रोफाइल है, तो सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर ये अटैक करेगा। इसलिए हम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, इनको पैरा पोजीशन तक कैसे शिफ्टिंग हुई वो हम शो करते हैं, जैसे कि हमने एनिलीन और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन में भी शो किया था। तो देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए बेंजीन रिंग की तरफ, देखो तो जिस कार्बन से अटैच था ये ऑक्सीजन उसके पहले से 4 बॉन्ड है, ये लोन पेयर डोनेट करते ही साथ इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये बॉन्ड टूटेगा, जरूर टूटेगा, वही जो वीक है, वीक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की फर्दर शिफ्टिंग हुई। लेकिन अगला जो कार्बन है उसके पास भी देखो पहले से 4 बॉन्ड है, एक H तो लगा ही हुआ होता है, तो इसलिए उसके भी अब 5 बॉन्ड हो गए। तो अब वो पाई बॉन्ड फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे। देखो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स अब देखो पैरा पोजीशन तक देखो पहुंच गए। अब पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किए जाएंगे किसको, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम को।
उसके साथ कोवलेंट आपका बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट किए जा रहे हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन, एक डोनर हो दूसरा एक्सेप्टर, तो फॉर्मेशन वाला जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बट आफ्टर देयर फॉर्मेशन आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टर्मिनल नाइट्रोजन की तरफ। अब जो आपका नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अब आराम से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है। देखो ये हमने शिफ्ट करते हुए दिखाए, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम का पॉजिटिव चार्ज फिनिश, और इस तरह से आपने देखा एन और एन के बीच डबल बॉन्ड हो गए, और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाली नाइट्रोजन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड बन गया है। फिर बेसिक नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो ग्रुप था, ये बेंजीन रिंग के एनिलीन वाले फिनोल वाले बेंजीन रिंग के जिस पोजीशन से अटैच हुआ जो कि पैरा पोजीशन है, उसी पैरा पोजीशन से क्या लॉस होना होता है बोलो, H पॉजिटिव आयन, टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग ऑफ द फिनोल का जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी दोबारा से मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो देखो H पॉजिटिव आयन, देखो ये दोबारा से बैकशिफ्ट दिखाया, CH जो बॉन्ड है उसका देखो क्लीवेज होगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, देखो H पॉजिटिव निकलेगा ये यहाँ से, तो दोबारा से देखो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दोबारा से शिफ्ट, ऑक्सीजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपने पास लिए, H पॉजिटिव निकला, और इस टाइप से फाइनली बन गई आपकी एचओ डाई। क्या बन गई आपकी एचओ डाई। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कपलिंग रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। डिफरेंस इसलिए रहेगा दोनों के बीच, देखो दो फैक्टर तो कॉमन रहने वाले हैं, और दो फैक्टर जो पीएच वाले फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वो अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट ऑफ फिनोल है जिसका एसिडिक नेचर होता है, और जो लास्ट रिएक्शन हमने देखी थी एनिलीन वाली, एनिलीन का बेसिक नेचर था। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो एनिलीन की जो कपलिंग रिएक्शन चली थी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ, वहां पे हमने पीएच कितनी मेंटेन करनी पड़ी थी, 4 से 5। यहाँ पे पीएच कितनी मेंटेन हमें करनी पड़ती है, 9 to 10। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया कि फैक्टर अफेक्टिंग द कपलिंग रिएक्शन इन बिटवीन द फिनोल एंड द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो जो मेन चीज आपको साफ साफ जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का आपको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज करना है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको डिक्रीज करनी है बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन देयर बेंजीन रिंग। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के बेंजीन रिंग में हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके बेंजीन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके और इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज। ऐसे ही जो आपका फिनोल है उसके बेंजीन रिंग के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो by introducing the electron releasing group in the benzene ring of the phenol we will increase the nucleophilic nature। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर इफेक्ट कौन सा आपका, पीएच। तो पीएच कैसी रखें, हाईली बेसिक मीडियम या हाईली एसिडिक, कैसी पीएच। हाईली आप बेसिक मीडियम नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम में क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे, और OH नेगेटिव आयन देखो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन एजोनेट्स बना देंगे। क्या बना देंगे बोलो, एजोनेट्स। या दूसरा काम क्या कर देंगे, इसका एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हाईली बेसिक मीडियम का ये है कि जो फिनोल ग्रुप था, जो फिनोल है देखो वहां पे जो बेस है OH नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, H को दे दिए, तो वहां से O और H के बीच का देखो बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, तो जिसकी वजह से O नेगेटिव आयन बन गया, तो जिसकी वजह से उसका जो प्लस आर इफेक्ट है वो हाईली इंक्रीज हो गया। लेकिन उस हाईली इंक्रीज होने का हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, फिनोल वाले बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बेसिक मीडियम में, लेकिन जो ये आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है हाईली बेसिक मीडियम में है, तो ये उसी रिएक्शन मिक्सचर में एक ही कंटेनर में ही तो है, ऐसा तो नहीं ना अलग अलग कंटेनर के अंदर है। द सेम कंटेनर द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ग्रुप इज प्रेजेंट, इन द सेम बीकर द फिनोल इज प्रेजेंट, क्योंकि दोनों के बीच हमें रिएक्शन करवानी है। तो हाईली बेसिक मीडियम हमने कर दिया, तो वो आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट तो गया फिनोल के ऊपर, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट अब यहाँ पे है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के ऊपर, जैसे एनिलीन के केस में पड़ा था। क्या ये एजोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। OH नेगेटिव आयन देखो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दिया, इसने नाइट्रोजन को, टर्मिनल नाइट्रोजन को, और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन अपनी तरफ लिए, तो ये बन गए एजोनेट्स, और एजोनेट बन गए। तो अब एजोनेट के बनने से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ही तो चाहिए रिएक्शन के अंदर, हमें एजोनेट्स नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड फ्रीली अवेलेबल नहीं है फॉर द रिएक्शन, सो द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन विल डिक्रीज। इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन हाईली बेसिक मीडियम में क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। तो हाईली बेसिक मीडियम के अंदर फिनोल का तो आयनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से उसका प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बड़ी रहेगी, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। अब वो अपने उस बड़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे किसको, जिसको देना था वो तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है। अब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड तो फ्रीली अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम वो एजोनेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब हम बात करते हैं हाईली एसिडिक मीडियम की।
तो हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या हो जाता है, जो फिनोल है उसके ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, H पॉजिटिव आयन को, तो उसका प्रोटोनेशन हो गया। तो हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर जो OH ग्रुप है फिनोल के ऊपर जो लगा हुआ है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, इसलिए उसका प्लस आर इफेक्ट अब डिक्रीज हो जाएगा। बोलो उसका प्लस आर इफेक्ट बोलो क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। और प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोडेंसिटी कम इंक्रीज होगी फिनोल वाले बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। सो दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द कपलिंग रिएक्शन इन बिटवीन द फिनोल एंड द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से आपने देखी, डिफरेंट रिएक्शन थी आपकी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की, और डिफरेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी थे जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसलिए आपने इस रिएक्शन में जो ऑप्टिमम पीएच बोलो क्या चाहिए, 9 to 10, और जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए थी आपकी एनिलीन और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के बीच में जो कपलिंग रिएक्शन चली उसमें क्या थी, 4 to 5। सो दीज आर द डिफरेंट reactions of the benzene dichloride. Thank you.